Good morning, class. How are you? In previous few videos, we had completed chapter 2, which is self and personality, in which we had studied so many concepts: the concept of self, concept of personality, different type of theories of personality, for example, trait theory, type theory, psychodynamic theory, neo Freudian theory, the behavioral perspective, cultural perspective, and the humanistic perspective also. And we had also studied the assessment part, in which we had described about the different techniques of assessment of personality, in which basically we can understand we had understand the behavioral analysis, the self report measures, and the projective techniques. So this is all about the chapter 2, self and personality, which is very important chapter for your exam point of view. Okay, this is very lengthy and very important chapter. So let's discuss some questions related to chapter 2, which are most probably आपके एग्जाम्स में आने के इसके मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है. So first of all, NCERT questions. So there is question number 1. What is self, and how does the Indian notion of self and the Western notion differ? ठीक है, this is the question. In this you have to write down the concept of self and the comparison between Indian culture and the Western culture. ठीक है. Question second. What is meant by delay of gratification and why it is considered important for adult development? This is the concept of delay gratification. That means the self-regulation, in which we have to write down the self-regulation, the different 4 techniques of self-regulation, which are self-control, observation of own behavior, self-instruction and the self-reinforcement. ये 4 techniques आपको इसमें detail करनी है. Next question. How do you define personality and what are the main approaches to the study of personality? ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी बतानी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड द different theories, basically type approach and the trade approach. Okay, now next, what is trade approach to personality and how does it differ from type approach? ठीक है, तो few points जिसके बेसिस पे trade approach और type approach को differentiate करना है. बेसिकली ट्रेड अप्रोच दैट्स मीन अप्रोच जहाँ पे आप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल्स को एक ग्रुप में कंसिडर करते हो, जबकि जो आपका सॉरी ये टाइप अप्रोच था. एंड ट्रेड अप्रोच वो होता है जहाँ पे आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल को फोकस करते हो, द स्पेशलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, ऑन विच बेसिस आ इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट अनदर इंडिविजुअल. दिस इज द ट्रेड अप्रोच. सो फ्यू पॉइंट्स के बेसिस पे आप इन दोनों को कंपेयर करोगे. Next question. How does Freud explain the structure of personality? Basic concept of psychodynamic approach. After that, the structure of personality, in which you have to write down the ego, id, ego and the superego. Okay. Next question is, how would Horney explanation of depression be different from that of Alfred Adler? In this section you have to write down both approach, the Corin Horney approach and the Alfred Adler approach. दोनों ही approach को आपको डिटेल में explain करना है. Next question. What is the main proposition of humanistic approach to personality and what did Maslow mean by self actualization? ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली कॉन्सेप्ट बताओगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का या ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव का, what they believe and the Maslow's theory in detail, basically the concept of self-actualization. Okay. Next question is, discuss the main observational methods used in personality assessments and what problems do we face in using these methods. तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उससे आप एक्सप्लेन करोगे, एट द सेम टाइम इवेलुएट भी करोगे कि किस बेसिस पे इसमें क्या मेरिट और डीमेरिट है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन मेथड. ओके,
there are so many types of observation, non-participants and participants, but the types of observation, the steps of observation and the evaluation part. Next question is, what is mean by structured personality test and which are the two most widely used structured personality test. ठीक है, आपको स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट इसमें डिफाइन करना है. ठीक है, बेसिकली जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं वो एक्सप्लेन करना है इसमें, और टू मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट इसमें डिफाइन करना है, जिसमें कि आप EPQ है, MMPI है और आपका 16PF है. इनमें से आप कोई भी एनी टू आप एक्सप्लेन कर सकते हो. So structured and non-structured. Structured, that's mean the self-report measures, and the non-structured, which is projective techniques. तो remember the term. क्वेश्चन हमेशा इनडायरेक्ट आएंगे, इस तरह से आएंगे. सेल्फ रिपोर्ट मेजर करके नहीं आएगा, इस टाइप से आएगा, तो नेवर बी कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स assess personality and which projective test of personality are widely used by psychologists, in which you have to describe first of all the method of unstructured method of personality and the concept of projective techniques. After that you have to describe any one test, Rorschach block test, TAT, and sentence completion test hai, draw a person test. So many tests are there, you have to write down only one test in detail. Okay, so next question is to explain the evaluation part, the limitation of projective techniques, the demerits of. Next question is, Arihant wants to become a singer even though he belongs to a family of doctors. So though his family members claim to love him but strongly disprove his choice of career. Using Carl Rose's terminology, describe the attitudes shown by Arihant's family. Basically, this is an example जिसकी बेसिस पे आपको ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक्सप्लेन करना है. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल रोजर्स, द एम्पैथी पार्ट एंड द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड द कॉन्ग्रुएंस, ये तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, और जो उनका मोटिव था, मेन जो उनकी थ्योरी का जिस्ट है, द फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, उसको लेके आपको कार्ल रोजर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है इस एग्जाम्पल को लेके. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द NCERT क्वेश्चन. दिस इज नॉट द लिमिट, NCERT ही से ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. सो ट्राई सम मोर क्वेश्चन टू सॉल्व. ओके, सो और क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर एंड द लॉन्ग आंसर्स वन बाय वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. How is personal identity different from social identity? This is a very short question. I know you all are doing well. And second is, why social self is called familiar or relational self? Again, logical question. Define personality assessment. Here you want to write the definition of assessment. What is libido? This is again very short and conceptual question. Next is, what are traits? The definition of traits. Explain interactional approach of personality, the third approach, the trait approach, type approach and the interactional approach. ठीक है, वहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन करना है, द इंटरेक्शनल अप्रोच. स्टार्टिंग में मैंने बताया है उस सेक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. डिफाइन पर्सनालिटी और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. दिस इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी ये कंसिडर हुआ था वेरी शॉर्ट आंसर में. हियर you want to ask the difference between personal self and the social self. Next is, what is self esteem? Again a short answer type question. Self esteem का whole concept explain करना है. Next is, what is self efficacy? What is social learning? Next is, explain concept of defense mechanism. This is very important question. Explain interactional approach of personality. ठीक है, सो बेसिकली इंटरैक्शनल अप्रोच जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म या ईगो से, हमारी जो फ्रॉइड की थ्योरी है, दिस नोन एज इंटरैक्शनल अप्रोच. ओके, सो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, और जो भी 5 हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है उन्हें विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है. कम से कम एक एग्जाम्पल आपको हर कॉन्सेप्ट का कंसिडर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एरिक फोरम डिफरेंट फ्रॉम
फ्रॉइड अप्रोच टू पर्सनैलिटी. एरिक फोरम इज़ अ न्यू साइकोडायनेमिक अप्रोच से बिलोंग करते थे. सो बेसिकली ये फ्रॉइड से किस पॉइंट पे डिसएग्री करते थे, क्या डिफरेंस है इन दोनों की थ्योरी में, वो एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज व्हाट फंक्शंस डू ड्रीम सर्व अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड. द ड्रीम एनालिसिस टेक्निक जो उनकी है, ट्रीटमेंट टेक्निक, वो एक्सप्लेन करना है इन दिस सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओडिपस एंड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट. बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट है आपके फेलिक स्टेज के, विच इज़ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेज है फ्रॉइड की, उसकी ये थर्ड स्टेज है फेलिक स्टेज, जिसका एज ग्रुप 5 ईयर है, 4 to 5 ईयर से लेके आपका 10 to 12 ईयर तक माना जाता है फेलिक स्टेज. तो उस स्टेज में ये ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है चिल्ड्रंस में. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस बिहेवियरल रेटिंग टू असेस पर्सनालिटी. डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल रेटिंग्स जो हैं वो इसमें असेस करना है, डिस्क्राइब करना है, एंड ऑल्सो द लिमिटेशंस ऑफ द बिहेवियरल रेटिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन द limitation of observation as a method to evaluate personality. Observation method explain करना है. Again, types of observation method and the steps of observation method and the limitation of observation method. Next question is what is an interview? Explain its limitations. The concept of interview, the structured interview and the unstructured interview, the concept of schedule and the limitation of interview. Next is how personality can be assessed through DAPT. This is a test. ठीक है, draw a person test. DAPT, this is a projective test. तो इस टेस्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. अगर आपको शॉर्ट में पूछ ले रहा है, देखो क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग है. हाउ पर्सनैलिटी कैन बी असेस्ड थ्रू DAPT. आप DAPT का अगर फुल फॉर्म ही नहीं कर पाओगे तो यू कैन नॉट एबल टू ट्राई द आंसर, राइट द आंसर. ओके, सो दिस इज द little bit confusing question. Next is who is a healthy person. Here you want to write down the basic characteristics of healthy person given by humanistic theorist. Next, the short answer type questions, in which question 1 is differentiate between self and personality. ओके, यहाँ पे सेल्फ का कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट कंपेयर करना है और क्या इसमें डिफरेंसेस हैं वो आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स ट्रेड एंड द सरफेस ट्रेड एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल. बेसिकली जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी राइट डाउन करनी है. ठीक है, दैट्स नॉट मीन कि आपको सोर्स ट्रेड और सरफेस ट्रेड डिटेल में ही बता देना है, इसका कॉन्सेप्ट बता देना. नो, यू हैव टू राइट डाउन द होल थ्योरी गिवन बाय कैटल. पूरा आप कॉन्सेप्ट बताओगे थ्योरी का, उसके बाद इन दोनों ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करोगे और डिटेल करोगे. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स प्रपोज बाय आलपोर्ट यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल. आलपोर्ट की पूरी थ्योरी आप इसमें इस सेक्शन में एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट इज व्हाट आर द ब्रॉड डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी प्रपोज बाय एजे आइजनेक. तो आइजनेक ने बेसिकली 3 डायमेंशंस दिए थे, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और सेकेंड डायमेंशन था उनको साइकोटिज्म एंड सोशिएबिलिटी. ठीक है, तो ये जो तीनों डायमेंशन थे उनके, न्यूरोटिज्म एंड इमोशनली स्टेबिलिटी भी, तो ये तीनों डायमेंशन आपको डिटेल करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी. कोस्टा एंड रिवर का जो 5 फैक्टर मॉडल था, द बिग 5 फैक्टर्स, उससे पूरा 5 पॉइंट को लेके एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज़ गिवन बाय मैस्लो, वो भी है. और बेसिकली जो हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का बहुत ब्रॉडली अंडरस्टैंड किया गया वहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो वो पॉइंट आपको डिटेल में देने हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस as proposed by Freud and how unconscious is important. बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट का, थ्योरी का, एंड उसके बाद आपको ये जो आपके लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है 3 के तीनों को एक्सप्लेन करना है इन डिटेल विथ एग्जाम्पल. एंड what are डिफेंस मैकेनिज्म. डिस्कस फ्यू डिफेंस मैकेनिज्म. अगेन इसमें डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा फ्रॉइड के बारे में बता के, उसके बाद ये आपके 5 डिफेंस मैकेनिज्म को डिटेल करना है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ डू द पोस्ट फ्रॉइडियन डिफर फ्रॉम फ्रॉइड? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यहाँ पे आपको पोस्ट फ्रॉइडियन 5 साइकोलॉजिस्ट है जिन्हें नियो फ्रॉइडियन या पोस्ट फ्रॉइडियन कहते हैं. तो उनके 5 की पाँचों की थ्योरी को एनालाइज करके उसके बेसिस पे वो फ्राइड से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा देना है. मैंने जब पढ़ाया है आपको तो स्टार्टिंग में फ्यू पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने कंपेयर किया था कि हाउ द फ्रॉइड एंड द नियो फ्रॉइडियन आर डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज behaviorist approach of personality, the whole aspects of behaviorist theories, वो एक्सप्लेन करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कल्चरल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी. द कल्चरल अप्रोच जहाँ पे इन्वायरमेंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है. किसी दो इन्वायरमेंट या दो कल्चर को आप कंपेयर करके करोगे. मैंने एक एग्जांपल दे के बताया है, वैसे ही आप दो कल्चर को कंपेयर करते हुए एक अच्छा सा एग्जांपल राइट डाउन करोगे और पूरा कल्चरल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करोगे. सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस सेक्शन. नाउ कम टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फुल क्वेश्चंस 6 मार्क्स में आते हैं ये बेसिकली. डिस्क्राइब द टाइप अप्रोच टू पर्सनालिटी. इसमें जो आपकी पूरी टाइप अप्रोच है, कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं. आपका उससे हिपोक्रेट से स्टार्ट होता है, देन चरक संहिता, देन शेल्डन, जुंग. तो जितना भी है आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब समराइज करके सभी की थ्योरी थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है. तो पूरा आपको टाइप अप्रोच बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप अप्रोच होता क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप अप्रोच, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप अप्रोच जो है वो पूरा डिस्क्राइब करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी. अगेन ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा आप नहीं लिखोगे तो, बट पूरे आपको कॉन्सेप्ट्स उसमें सारे आपको पूरे देने, बट उससे समराइज वे में देना है. द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉइड, द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड द डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट. ठीक है, सारे को आप कंपेयर करोगे. नेवर फॉरगेट द इवेल्युएशन पार्ट, द लिमिटेशंस, नेवर फॉरगेट, which is very important. Okay, next question is discuss psychosexual stages of development. In this section you have to write down only the psychosexual development given by Freud. ठीक है, खाली आप पांचों स्टेजेस एक्सप्लेन करोगे और इसमें बेसिकली जो एक चार्ट, एक डायग्राम बना के करोगे तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव. ठीक है, स्टेज, देन एज, देन प्लेजर सिंकिंग सेंटर एंड द डेवलपमेंट, इस तरह से एक आप चार्ट बना के करोगे, इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव. तो इस सेक्शन में आप ऐसे राइट डाउन करोगे. नेक्स्ट है इवेलुएट साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्रिटिकली. जहाँ पे आपका क्रिटिकल वर्ड ऐड हो रहा है वहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, उसकी मेरिट और डीमेरिट के बेसिस पे उसे इवेलुएट कर देना है. थोड़ा सा थ्योरी का कॉन्सेप्ट बनाना है, अगेन उसे इवेलुएट कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट. ओके, डिस्कस पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच टू पर्सनैलिटी. सो बेसिकली जितने भी अप्रोचेज हैं, पोस्ट फ्रॉइडियन, जुंग का है, एडलर का है, और हॉर्नी का है, ठीक है, और एरिक फोरम का, एरिक एरिक्सन का है. तो ये पांचों अप्रोच आप छोटा छोटा सा क्या मेन कॉन्सेप्ट था उनका वो बताते हुए एक्सप्लेन करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टू असेस पर्सनैलिटी. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एवरी ईयर डिफेंस मैकेनिज्म से और प्रोजेक्टिव टेक्निक से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं. सो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल फॉरगेट नहीं करना है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. ओके, सो डिस्कस वेरियस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लाइक इंक ब्लॉक टेस्ट है हरमन रोशा का, TAT है, और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट है, PF टेस्ट है, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट. ओके, तो ये सारे टेस्ट को आपको डिटेल में पढ़ लेना है. बेसिकली any2 करके आता है या any1 करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या अगर सबको भी पूछ रहा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बता के और उसके बाद सारे टेस्ट को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पर्सनैलिटी कैन बी assessed through behavioral analysis. इसमें behavioral analysis के थ्रू, दैट्स मीन ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और behavioral रेटिंग स्केल्स जो हैं उनके बेसिस पे पर्सनालिटी किस तरह से असेस की जाती है वो डिटेल में एक्सप्लेन करना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स एंड द इवेल्युएशन पार्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट important questions related to chapter 2. This is only the very short answer type questions, short answer type questions and the long answer type question. ऑब्जेक्टिव आर मिस इन दिस वीडियो. सो ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मैं प्लान कर रही हूँ कि आपका टेस्ट लूँ.
ठीक है, मैं पर चैप्टर्स कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाती हूँ और उसके बेसिस पे आपका मैं टेस्ट लूँगी. सो उसके लिए भी प्रिपेयर हो, कुछ आप फाइंड आउट करो, कुछ मैं फाइंड आउट करती हूँ और इसके बेसिस पे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 2. Without wasting time, let's start the chapter 3, which is meeting life challenges. ठीक है, let's start the chapter 3. So I will start this chapter with a story. A student, his name is Raj. Raj has been studied for his final examination, which is going to take place tomorrow morning. Okay, he studied till 1 a.m. at night, and unable to concentrate anymore, he sets the alarm for 6 a.m. and tries to go off to sleep. As he is very tense, he keeps tossing and turning in bed, and images flash through his mind of not being able to secure the marks he need to opt for the subjects of his choice. He blames himself for fooling around with his friends and not preparing thoroughly for the examination. And in the morning, he wakes up with a heavy head and misses breakfast and barely makes it in time to school for his examination. He opens the question paper, his heart pounding, hands clammy with sweat, and then he feels his mind has gone completely blank. Okay, so this is the situation of Raj. आप सभी स्टूडेंट कभी ना कभी लाइफ में एग्जामिनेशन फोबिया या जिसे कह सकते हैं एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस फील करते हो. सो सम ऑफ यू मे हैव लीव थ्रू एन एक्सपीरियंस सच एज राज. द challenges posed by examination is common to all students. Okay, look around yourself and you will find that life is a big challenge. All of us try to meet these challenges in our own way. That means our way to respond the challenges, our way to deal with the challenges are very much unique and different from others. Some of us succeed while others succumb to such life stresses. So life challenges are not necessarily stressful, but much depend on how a challenge is viewed. That means how we perceive the whole situation. Our mindset is responsible for our stress, not the situation. Okay, so this is the concept. We will like to consider in this chapter how a life conditions and turns into a challenge or a cause of stress. Further, we will also see how people respond to various life challenges as well as a stressful situation. That means in this chapter we will understand the concept of stress, the different types of stress, and the causes of stress, how we deal with this stress, the responses of stress. Okay, so many concepts related to stress we will discuss in this chapter. So as the name suggests, meeting life challenges. That means stress is known as a challenge, a difficult situation in which you have to respond in a mature way, in a effective way. So this is the stress. Let's look at the concept. Nowadays in our environment, in the different kind of situation, basically due to COVID-19 and so many other challenges, so stress is a part of our life. Okay, so stress is neither a stimulus nor a response but an ongoing transactional process between the individual and the environment. This is the ongoing process between the individual and the environment. Life is full of challenges, such as challenges of examination by student or the challenges about a career. Think of a child who lost his or her parents, a young woman who lost her husband in an accident, or children who are physically or mentally challenged, and so on. You can see the so many stressful conditions, so many stressful individuals who are suffering with a very severe problems.
So in comparison to those people's, your stress, your problems are not very big, not very large, but at the same time you are also feeling so much stress related to examination, related to career choice, related to so many personal problems also. So all of us try to meet these challenges in our own way. ये जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, द इंटरेक्शनल प्रोसेस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इन्वायरमेंट, इसके थ्रू जो हमें चैलेंजेस मिलते हैं, इसको हम डील अप अपने यूनिक स्टाइल में, अपने यूनिक पैटर्न में करते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक जिसके थ्रू हम स्ट्रेस से डील करते हैं. सो लाइफ चैलेंजेस आर नॉट नेसेसरली स्ट्रेसफुल. हर लाइफ का चैलेंज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेसफुल हो, बट मस्ट डिपेंड हाउ आर चैलेंज इज व्यूज. किस तरह से आप उसे चैलेंज को लेते हो. इफ़ यू टेक इट पॉजिटिवली, you can comfortable to deal with it, and if you take it in negatively, if you magnify the things, you are suffering with stress. So stress is just like a electricity which provides energy, but too high or too energy becomes hazardous. Similarly, too much stress or too little stress have adverse effect for our well-being, and optimum stress is healthy. Now, what is stress? Stress is a pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturb the equilibrium and exceed a person's ability to cope. That means it is a pattern of responses जो कि एक organism अब एक stimulus या event के लिए करता है. This is the pattern of behavior, pattern of responses जो एक individual, एक organism stimulus और events के against करता है. ठीक है. किस पर्पज से? वो डिस्टर्ब जो इक्विलिब्रियम हो जाता है अपनी साइकी के अंदर, उसको उससे कोप अप करने के लिए, उससे अपनी एबिलिटी को वो यूज़ करता है उस सिचुएशन से डील करने के लिए, उस सिचुएशन से कोप करने के लिए. दिस इज द स्ट्रेस. सो द वर्ड स्ट्रेस हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस. ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से. बेसिकली जिसकी मीनिंग होती है टाइट और नैरो, और द इसका वर्ब फॉर्म जो है विट इज़ टाइटन. ठीक है. समथिंग जिसको जो कि एक रिजिड हो, एक पकड़ ले किसी चीज़ को. सो दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टस और द स्ट्रेस. ठीक है. सो और दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेसर. स्ट्रेसेस आर इवेंट्स दैट कॉज अवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस. ये क्या है? वो इवेंट, वो सिचुएशंस, वो कॉजेज जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए जनरेट करते हैं हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज. दीज आर द स्ट्रेसर्स. ओके. द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन. इन स्ट्रेसेस दैट मीन द बॉडी जो इन्वायरमेंट में हमारे जो कॉजेज हैं, जो सिचुएशन हैं जिनका परसेप्शन करके हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, दिस इज आर स्ट्रेसेस. और इस स्ट्रेसेस का जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रेसेस का जो हम रिएक्शन कर रहे हैं उसके लिए, वो हमारा स्ट्रेन है. ओके. बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर, यू स्ट्रेस एंड द डी स्ट्रेस. ठीक है. यू स्ट्रेस बेसिकली दैट इज गुड, हेल्दी, पॉजिटिव, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्ट्रेस. ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर परफॉर्मेंस. ठीक है. सपोज यू आर, अगर आप बिल्कुल भी एंशियस नहीं रहोगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहोगे एग्जाम का, तो क्या आप लोग पढ़ोगे, क्या प्रिपरेशन करोगे? नहीं करोगे. इफ़ यू आर एक्सट्रीमली रिलैक्स देन दिस इज़ नॉट वर्क. ठीक है. तो दैट्स मीन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस. So this stress which is required for good performance is known as U stress, which is good for health. Second is D stress. D stress is a negative, unhealthy, demotivating and the cause our body wear and tear. So this is the extreme level of stress जिसकी बेसिस पे हमारी बॉडी अनहेल्दी होती है और जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत लो चला जाता है. ये हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर के लिए बेसिकली कॉज्ड होता है. सो डी स्ट्रेस. सो बेसिकली स्ट्रेस हैव टू लेवल्स. दीज आर डिनोट एज अ लेवल्स बिकॉज अ मिनिमम लेवल, अ एवरेज लेवल which is required for performance is U stress, and the high level which is known as D stress. ठीक है. जिसकी बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, अच्छा नहीं होता है. दिस इज द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. Now come to the nature of stress.
जैसे बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन डिटेल. देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, सो मेनी वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू, so you have to take time for understanding this concept. So read it with patience and try to understand by levels. Okay, so in this video I give you a homework. Write down some questions related to chapter 2 and learn it and show me in your WhatsApp group. Okay class, thank you.